हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज, हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस ओनली, मतलब ये हाई वेटेज चैप्टर नहीं है, लेकिन एनटीए ने अपने सिलेबस में कुछ ज्यादा कुछ चीजों को ऐड करके रखा है, सो वी हैव टू स्टडी दोस कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी एनाटॉमी मतलब क्या है? एनाटॉमी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? टिश्यूज हो सकता है। टिश्यू मतलब क्या है? टिश्यूज आर नथिंग बट सेल्स विच इज grouped together, and the cells which is having common origin and function when they are grouped together is called as tissue. Okay, plants have got two types of tissue. plants में आप दो तरह का टिश्यू देखने के लिए मिलता है. The very first type of tissue which we are going to discuss is meristem tissue, which is a very young tissue ऐसे बोल सकते हैं, because which will be this will be helping in growth and development as well. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फर्दर दो तरह का टिश्यू होता है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्राइमरी मेरिस्टेम will be helping in increase of the length of the plant, and there are two types of meristematic tissue over here, that is apical and intercalary meristem. Apical meristem is present at the shoot tip and root tip, and hence they will be helping in increase of the length of the plant, root length as well as shoot length. Okay, and cells which is left behind in the shoot system will be actually forming the axillary bud. Okay, now coming to another type of primary meristematic tissue is intercalary meristem, and they are present between the mature tissues of the plant. And now coming to secondary growth. Secondary meristematic tissue will be helping in increase in the girth of the plant. Length ये है, girth मतलब width of the plant, broadness of the plant tree. So this is being caused by the secondary meristem. Okay, और इसके अंडर एक तरह का मेरिस्टम आता है which is called as lateral meristem, which will be helping in lateral growth of the plant or tree. And all the cambium tissue, जहाँ हम ये वर्ड केम्बियम करके मतलब हमें देखने के लिए मिलता है, ये सारा केम्बियम टिश्यू जो होता है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. एंड दिस केम्बियम टिश्यू will be present in dicot stem only, and it will be helping in increase of the the lateral growth of the plant. मतलब girth को increase करने के लिए help करते हैं ये tissues. Now coming to permanent tissue. नाम में ये permanent. Basically meristematic tissue are not really differentiated compared to permanent. Permanent tissue, as the name say, they have got permanent work to do. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, दे आर सॉर्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, दे डोंट हैव अ परमानेंट फंक्शन टू डू, वर्क टू डू. लेकिन ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये यहाँ आपको परमानेंट फंक्शन देखने के लिए मिलता है. एंड यहाँ दो तरह का टिश्यू होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल में तीन तरह का टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. स्टार्टिंग विद द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा आर they are the type of simple permanent tissue. As the name says, simple permanent tissue, they are made up of very simple type of cells. मतलब एक ही तरह का सेल्स ये तीनों टिश्यू में होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह का सेल्स एक टिश्यू में होता है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर दो आता है, xylem and phloem. Okay, so let's get started with the parenchyma. Parenchymatous tissue is made up of isodiametric cell. What is the meaning of this? Isodiametric मतलब क्या है? सेम डायमीटर होता है ऐसा सेल्स में, एंड हेंस द नेम isodiametric cells. And these type of cells either won't have any intercellular spaces, okay, or very little intercellular spaces can be seen between the parenchymatous tissue. और इसका फंक्शन क्या है? parenchymatous tissue का फंक्शन क्या है? S3, मतलब 3S है इसका फंक्शन, that is synthesis of food, storage of food and secretion. Secretion का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया यहाँ, so they will be also helping in secretion. Okay, they will be secreting certain things. फिर कहाँ आपको ये parenchymatous tissue देखने के लिए मिलेगा? So we will be able to see parenchymatous tissue usually in the cortex or in any available spaces. मतलब जहाँ जहाँ प्लांट में खाली जगह है वहाँ ये parenchymatous tissue रहता है. Okay, now coming to another type of simple permanent tissue, that is collenchyma. So collenchyma
यहाँ कंपेयर टू पैरेन्काइमा दे हैव गॉट क्वाइट थिक वॉल. ओके, they have got a very thick corner, thick wall बोल सकते हैं. Parenchymatous tissue they have a very thin membrane. Okay, good amount of cytoplasm, they have vacuole, they have, लेकिन collenchyma का wall जो है ना, it is very thick, especially deposition they have got at the corner of the cell, and the deposition is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. Okay, and intercellular spaces यहाँ भी absent है. Coming to the function of collenchyma, since they have got thick deposition at the corner of the cell, they will be helping in mechanical support. और ये collenchyma कहाँ देखने के लिए मिलता है? Since it's quite stronger compared to that of parenchyma, ये आपको थोड़ा hard जगह जैसे young stem में दिखेगा, step हो गया, young stem में दिखेगा, petiole of the leaf मतलब stalk of the leaf में दिखेगा. So these are the location of the collenchyma. Okay. Next, coming to sclerenchyma. By the way, we will be seeing the location at the end as well. बाद में भी stem, leaf, root के बारे में जब discuss करेंगे उस टाइम भी पढ़ेंगे. Coming to sclerenchyma. Sclerenchyma are the dead tissue on the maturation. मतलब जैसे ही वो mature होता है उस टाइम वो dead हो जाता है. Okay. And they are usually long and narrow. और क्यों sclerenchymatous tissue dead हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ एक तरह का deposition हो जाता है. That is one. देखो initially sclerenchymatous tissue are living, लेकिन after some time they will be getting the deposition of lignin. Okay, which is non-water soluble, which won't be allowing water or any content to go in and out. इसकी वजह से ये जो cells है इसका मर जाते हैं. And they have thick lignified cell wall with a pits. Okay. और इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट. अभी पिट के बारे में डिस्कस करेंगे. सपोर्ट करता है जैसे collenchymatous टिश्यू सपोर्ट में हेल्प करता है, जैसे ही sclerenchymatous टिश्यू विल बी आल्सो हेल्पिंग इन द सपोर्ट. और ये कहाँ कहाँ होता है? अगेन दे विल बी फाउंड इन द क्वाइट हार्ड प्लेसेस, जैसे ग्वावा, पियर, सपोर्टा के पल्प में होता है ऐसा टिश्यू. और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, टी लीव्स, ये सारा जगह में आपको sclerenchymatous टिश्यू देखने के लिए मिलेगा. यहाँ दो तरह का मतलब टिश्यू होता है, दैट इज फाइबर्स एंड स्क्लेराइट्स. फाइबर्स विल बी हैविंग टेपरिंग एंड दे हैव ओनली फ्यू पिट. पिट मतलब यू नो ओपनिंग ऐसे बोल सकते हैं. ओके, ऐसे थोड़ा सा जो स्पेस जो होता है ना, through which some content can go in and out. Of course, these all are dead. Sclerites में ज़्यादा pit होता है, and also they have got more deposition and they have got some lumen inside them. Okay, so that is about sclerites and fibers. फिर अभी हम पढ़ेंगे complex permanent tissue के बारे में, under which we will be seeing two type of tissue, that is xylem and phloem. Okay, so xylem तो हमें पता ही है, it will be helping in conduction of water, minerals, and phloem will be helping in transportation of food. So first let's study about xylem. xylem में further चार तरह का cells होता है या structures होता है, that is tracheids, vessels, fibers and parenchyma. That is xylem, fibers, xylem, parenchyma, tracheids and vessels. देखो vessels जो है ना, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, hence the name angiosperm. बाकी सारा जो structures है जिम्नोस्पर्म्स में भी हो सकता है. एंड कुछ कुछ तरह का xylem का कुछ कुछ structures तो टेरिडोफाइट्स में भी है. ठीक है, अभी tracheids जो है, tracheids are the structure which have a blunt end, मतलब they have a closed end ऐसे. Okay, whereas vessels will be having such open end. Okay, tube like structure होता है, and they are not found in gymnosperm. Xylem fibers are dead. Okay, xylem parenchyma, देखो ये same xylem है, sorry, these are the same parenchyma and same fibers that we get to see over here. मतलब कुछ कुछ simple permanent tissue xylem में भी होता है, जैसे xylem fibers and xylem parenchyma. Xylem parenchyma is a living cell which you get to see in the xylem. Hence it will be helping in storage of starch, fat, tannins. Also it will be helping in radial conduction of water. Okay. नेक्स्ट फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्लोएम में भी तीन तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज फ्लोएम का ट्यूब हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. बेसिकली फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है, इट इज कॉमन इन बोथ ऑफ दिस. ओके, सॉरी, पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो है वो xylem और फ्लोएम में कॉमन होता है. सो सीयू ट्यूब इज अ डेड स्ट्रक्चर बाय द वे. ओके,
सो नो न्यूक्लियस, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस. लेकिन देखो सीव ट्यूब कैसा होता है, एज ए नेम से सीव ट्यूब, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच विल बी हैविंग सीव. मतलब जैसे छलनी होता है ना, चाय छानने के लिए छलनी होता है ना, ऐसे ही ये सीव ट्यूब के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, पोर्स होता है, थ्रू विच फिल्ट्रेशन जैसे कुछ कुछ काम हो जाते हैं. एंड आल्सो दे विल बी हैविंग पिट्स. ओके, और उसका laterally there is going to be another cell called as companion cell which will be giving company to the sieve tube. Okay, ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ कंपेनी. एक्चुअली ये कंपेनियन सेल्स जो है ना, दे आर द लिविंग सेल, दे हैव गॉट न्यूक्लियस एवरीथिंग एंड दे विल बी कंट्रोलिंग द सीव ट्यूब फंक्शन. ओके, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी जाइलम पैरेन्काइमा जैसे ये भी लिविंग है, और यहाँ भी फूड स्टोरेज होता है, रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज भी स्टोर हो जाते हैं, बट दिस इज एब्सेंट इन मोनोकॉट. अभी फ्लोएम फाइबर्स जो है दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, दे आर डेड. देखो यहाँ के जैसे ये भी डेड है, एंड दे हैव गॉट यूसेस, मतलब जूट, फ्लैक्स और हेम्प का फाइबर्स, इट इज ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. सो यहाँ हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अभी ये जो जाइलम और फ्लोएम हमने सीखा ना, यहाँ भी ये जाइलम फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप का जाइलम फ्लोएम है. विल फर्स्ट सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम. ओके, मतलब ये जो प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम जो है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मतलब स्टेम में होगा ये सारा, प्लांट में जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना जाइलम फ्लोएम, उसको हम प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं. सो प्राइमरी जाइलम जो है, यहाँ दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, that is protoxylem and metaxylem. Protoxylem are the xylem which is first formed, metaxylem are formed later. Or based upon the distribution of these xylem, metaxylem and protoxylem, there are different, types of arrangement that you can see in the root and stem. अभी stem में protoxylem जो है which forms first, they will be present at the center ऑफ द स्टेम नियर द पिथ. पिथ मतलब स्टेम का सेंटर में कुछ कुछ टिश्यू होता है. ओके, सेल्स होते हैं, उसको पिथ कहते हैं. सो नियर टू द पिथ, दैट इज इंटीरियर, इनसाइड द स्टेम यू गेट टू सी प्रोटोक्साइलम. टवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द स्टेम यू गेट टू सी मेटाक्साइलम. और ऐसा वाला मेटाक्साइलम प्रोटोक्साइलम का अरेंजमेंट को हम एंडार्क बोलते हैं. एंडो मतलब क्या, इनसाइड. बेसिकली प्रोटोक्साइलम इज प्रेजेंट इनसाइड ओवर हियर, हेंस द नेम एंडार्क. ओके, फिर मेटाक्साइलम, सॉरी, एक्सार्क के बारे में देखेंगे. एक्सार्क नाम में ये एक्स मतलब आउटसाइड, सो हियर प्रोटोक्साइलम इज प्रेजेंट आउटसाइड, मेटाक्साइलम इज प्रेजेंट इनसाइड. ओके, और ये याद करने के लिए एक ट्रिक भी है. ओके, स्टडी इज अ ट्रिक. स्टडी में एस इज स्टेम, ओके, डी इज स्टा, डी है ना, स्टा इज स्टेम, डी इज एंडार्क. ओके, और यहाँ एक्सार्क में आर रूट में होता है और एक्स इज एक्सार्क. सो आर एक्स रिएक्शन हम शॉर्ट फॉर्म में आर एक्स लिखते हैं ना, सो आर एक्स इज द ट्रिक टू रिमेंबर. ओके, बाय द वे ये सारा ट्रिक मेरा नहीं है. ओके, नेक्स्ट प्राइमरी फ्लोएम के बारे में देखेंगे. एज अ नेम से, आई मीन प्राइमरी जाइलम में भी, प्राइमरी जाइलम में जैसे डिफरेंट टाइप्स था, वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम में भी है. सो प्राइमरी फ्लोएम में भी प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम है. Protofloem's sieve tube is narrow, whereas in metafloem you will be able to see larger sieve tube. By the way, ये सारा protofloem, metafloem, protoxylem, metaxylem, ये सारा हम स्टेम में अलग अलग स्ट्रक्चर, रूट में सारा देखने के लिए मिलेगा आपको. अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द टिश्यू सिस्टम. मतलब अभी तक हम हर छोटा टिश्यूज को अलग अलग स्टडी किया, लेकिन आफ्टर ऑल दिस ऑल टिश्यूज विल बी प्रेजेंट इन द स्टेम, इन द रूट, इन द लीफ एज अ ग्रुप, है ना. सो इसको हम टिश्यू सिस्टम बोलते हैं. टिश्यू सिस्टम के अंडर 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होता है, दैट इज डर्मल टिश्यू, वन विच कवर्स द प्लांट बॉडी, ग्राउंड टिश्यू and vascular tissue. Vascular tissue will be helping in transportation of food and water, that is mainly xylem phloem. और ये vascular tissue और dermal tissue के बीच में जो tissue होता है उसको हम ground tissue बोलते हैं. Okay, so let's get started first with the dermal tissue.
So they are present in the leaf, stem, root, anything, and they will be covering the plant body as I just told before some time, and they will be also having cuticle further covering them. Okay, लेकिन cuticle root में नहीं होता. और dermal tissue में क्या होता है? So dermal tissue further have got two important component, that is epidermis and stomata. Okay, so epidermis is made up of single layer of tightly packed parenchymatous cells, and they have got root hairs. Okay, रूट में रूट हेयर्स होता है, स्टेम में स्टेम हेयर्स होता है, मतलब एपिडर्मिस में हेयर्स होता है. ओके, सो रूट में जो हेयर्स होता है ना, that is going to be soft unicellular and it is going to increase the surface area of absorption of water and minerals. लेकिन हमारे स्टेम में जो हेयर्स होता है ना, एपिडर्मिस में स्टेम में हेयर्स होता है ना, उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, and it is going to be multicellular, stiff and sometimes branched, unbranched, and it is going to show secretory function. Okay, फिर स्टोमाटा के बारे में डिस्कस करेंगे. If you consider stem and in the leaf, you will be able to see stomata. Basically, leaf में stomata ज़्यादा होता है, stem में कम होता है. So, stomata के बारे में डिस्कस कर गए. मोनोकॉट में जो stomata होता है, sorry, first we'll discuss about the cells which is present around the stomata. Okay, so stomata मतलब हमें पता है, it is the pores which you get to see on the leaf usually, है ना. So ऐसे दिखने के लिए मिलता है stomata. This is a stomatal pore. Okay, stomatal pore, that is a pore that you get to see on the leaf, is been surrounded by guard cell, subsidiary cell and epidermal cells. Of course पूरा leaf जो है वो epidermal cell से ही बना हुआ है, लेकिन पोर के पास क्या होना चाहिए? गार्ड सेल्स होता है, सब्सिडरी सेल्स होता है. सब्सिडरी सेल्स आर नथिंग बट मेड आउट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ओनली. और सब्सिडरी सेल्स के अंदर अंदर आपको गार्ड सेल्स देखने के लिए मिलता है यहाँ. एंड गार्ड सेल्स आर रिच विद द क्लोरोप्लास्ट एज यू कैन सी, और they can also intake and release out the water, and based upon this stomata will be able to close and open. और गार्ड सेल का इनर वॉल जो है ना, दैट इज थिक, एंड आउटर वॉल है ना ये, दैट इज क्वाइट थिन. ओके, और क्या बोलना था, हाँ, स्टोमाटल एपर्चर के बारे में. तो सब्सिडरी सेल, स्टोमाटल पोर, गार्ड सेल, ये तीन चीजों को हम स्टोमाटल एपर्चर बोलते हैं. ओके, स्टोमाटल एपर्चर मतलब स्टोमाटल पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड स्टोमाटल एपर्चर. और ये जो मेन हमारा यहाँ जो हीरो है ना, जो स्टोमाटा को ओपन क्लोज करता है, वो है गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स का शेप मोनोकॉट डाइकॉट में अलग अलग होता है. मोनोकॉट में दे हैव गॉट डम्बेल शेप. डम्बेल आपको सारा पता होगा, वो जो वेट लिफ्टिंग या जिम में यूज करते हैं डम्बेल, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा शेप आपको गार्ड सेल का शेप ऐसा रहेगा इन मोनोकॉट. डाइकॉट में दे हैव प्रॉपर किडनी शेप, एज यू कैन सी, ऐसे किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स यू गेट टू सी इन डाइकॉट. फिर ग्राउंड टिश्यू में देखेंगे क्या क्या होता है. सो एक्सेप्ट एपिडर्मिस वैस्कुलर बंडल्स, whatever tissue you have is ground tissue, that is cortex, pith, medullary rays, pericycle, ये सारा यही है. so यहाँ parenchyma, collenchyma, sclerenchymatous tissue हो सकता है depending on the stem, root and leaf. stem और root में cortex, pericycle, pith, medullary rays होता है. leaves में mesophil होता है. mesophil is made up of palisade and spongy parenchyma, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे in some time. फिर आता है हमारा vascular tissue which is made up of xylem and phloem. So there are different arrangement of xylem and phloem. जब xylem और phloem अलग अलग रेडियस में होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये phloem एक रेडियस में है, xylem एक रेडियस में है. So ऐसा वाला अरेंजमेंट जो है ना xylem और phloem का, इसको हम रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं, which is found in root. stem में ये क्या है, वो phloem और xylem का रेडियस एक ही होता है. मतलब आप यहाँ यही xylem और यही phloem देख सकते हैं. ये हो गया xylem और ये हो गया phloem, मतलब ये phloem है, ये xylem है, ये phloem है, xylem है. So they are present in the same radius, xylem, phloem.
I mean xylem phloem. So they are present in the same radius. और ऐसा वाला अरेंजमेंट को कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल करके बोलते हैं. ओके, यस. नाउ coming to vascular bundle in stem. Okay, so if you see in the case of dicot में ये फ्लोएम और xylem में बीच, ये है xylem और ऊपर फ्लोएम है ना, xylem और फ्लोएम के बीच में डाइकॉट में आपको कैम्बियम मिलेगा देखने के लिए, which will be made up of some type of meristematic tissue which will be helping in the secondary growth of the plant, that is increase of the girth of the stem. बड़ा बड़ा डाइकॉट का ट्रीज का विड्थ ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा होता है बिकॉज दे कीप ऑन ग्रोइंग एज एंड व्हेन ईयर पासेस एंड दैट ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द कैम्बियम. लेकिन ये मोनोकॉट में नहीं होता, और मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए दे आर क्लोज्ड फॉर द ग्रोथ. मतलब मोनोकॉट का ब्रॉडनेस बहुत कम होता है, ओके, कंपेयर टू द डाइकॉट ट्रीज का ब्रॉडनेस, है ना. सो डाइकॉट इज ओपन फॉर ग्रोथ whereas monocot is closed for growth. So hence the arrangement of xylem phloem over here in monocot is called as closed, dicot it is called as open. यहाँ हो गया हमारा vascular tissue. अभी हम पढ़ेंगे leaf, stem, root of monocot and dicot, starting with the dicot का monocot का leaf के बारे में first पढ़ेंगे. Okay? So leaf में, stem में, root में ये सारा tissues कैसे arrange होता है देखेंगे, starting with the leaf. So let's have a look first of dicot leaf. ये तो बचपन से ही ये ड्राइंग आप ड्रॉ कर रहे होंगे स्कूल में, है ना. सो इफ यू कट द लीफ, सो ये है लीफ आपका, ओके. इमेजिन इफ आई एम अ प्लांट, ओके. ये लीफ जो है ना, इफ आई टेक द सेक्शन ऑफ द लीफ लाइक दिस एंड इफ आई सी द लीफ ऐसे, वी विल बी एबल टू सी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. ओके, अपर एपिडर्मिस को हम एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल कहते हैं. ओके, एडैक्सियल का मतलब क्या है, डॉर्सल साइड ऑफ द प्लांट, क्या है ये, है ना, डॉर्सल साइड ऑफ द लीफ, उसको हम एडैक्सियल बोलते हैं, वेंट्रल को एबैक्सियल. ओके, सो कमिंग टू द स्टोमेटा, देखो एबैक्सियल एपर्चर मतलब वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ जो है ना, यहाँ आपको ज्यादा स्टोमेटा मिलेगा देखने के लिए. मतलब लीफ का नीचे ज्यादा स्टोमेटा होगा, ऊपर कम होगा. दैट इज टू प्रिवेंट द और रेड्यूस द ट्रांसपिरेशन, है ना. लीफ के ऊपर ज्यादा स्टोमेटा होता तो क्या होता, अपर पार्ट ऑफ द लीफ इज मोर एक्सपोज टू द सन कंपेयर टू द लोअर पार्ट. ओके, सो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता. सो इसीलिए लोअर सरफेस, दैट इज वेंट्रल सरफेस, दैट इज एबैक्सियल epidermis is going to have a more stomata compared to that of the adaxial surface. So epidermis के अंदर क्या आएगा, so ground tissue आएगा. मतलब यहाँ ground tissue को हम mesophil बोलते हैं. meso मतलब middle, fill मतलब leaf. okay, लीफ का मिडल मतलब एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के मिडल जो आता है वो मीसोफिल है, विच इज मेड अप ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. पैलिसेड, मीसोफिल और पैलिसेड पैरेन्काइमा इज गोइंग टू बी रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज गोइंग टू बी राउंड राउंड, ओके, ऐसे. ओके, और क्या है ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी मीसोफिल टिश्यू या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बीच में बहुत एयर कैविटीज है विच इज कॉल्ड एज सबस्टोमेटल कैविटीज. And it will be helping in proper gaseous exchange and all these things. Air cavities, बहुत सारे air cavities दिखने के लिए मिलता है, और air cavity which is near to stomata is called a substomatal cavity. Okay, and all this tissue that is mainly palisade, spongy parenchyma, both of these mesophil tissues are rich with the chloroplast, chlorophyll, and hence they are able to show photosynthesis. फिर ये जो bundle sheath जो है ना, आप यहाँ बंडल शीट को देख सकते हैं, इनसाइड विच यू आर एबल टू सी xylem and phloem. सो यहाँ बंडल शीट इज मेड अप ऑफ वेरी थिक वॉल. ओके, इन द केस ऑफ dicot leaf you can see there is a bundle sheath which is made up of thick wall and inside which you are able to see xylem and phloem. ये है xylem, okay, ये है phloem. So bundle sheath would be having xylem and phloem. So that is about
डाइकॉट लीफ। वैसे डाइकॉट लीफ को हम दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं, दैट इज डॉर्सोवेंट्रल लीफ, क्योंकि यहाँ डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस है इसलिए। क्योंकि मोनोकॉट में डॉर्सल वेंट्रल सरफेस नहीं है, मोनोकॉट ऐसे होता है ना। अरे मोनोकॉट लीफ मतलब ग्रासेस ऐसे ऐसे होते हैं। यहाँ प्रॉपरली लीफ इज गोइंग टू बी प्रेजेंट लाइक दिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस वी हैव ओवर हियर, है ना। सो मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलैटरल लीफ बोलते हैं, क्योंकि डॉर्सल वेंट्रल सारा सेम है यहाँ, दे हैव आइसोबाइलैटरल लीफ। एंड यहाँ आप देखो, यहाँ नीचे और ऊपर सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी मेसोफिल टिश्यू है विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्किमाटस सेल्स, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कुछ सेल्स होता है कॉल्ड एज बुल्लीफॉर्म सेल्स। यहाँ अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, शायद यही है बुल्लीफॉर्म सेल्स। ओके, यही है बुल्लीफॉर्म सेल्स। सो बुल्लीफॉर्म सेल्स इज प्रेजेंट अटैच्ड टू द वैस्कुलर बंडल विच विल बी एबल टू डिसाइड द वाटर लेवल। ओके, और इसके वजह से क्या वाटर लेवल के वजह से, अलग अलग वाटर लेवल के वजह से the leaves will be able to fold or unfold. Basically, bulliform cells will be helping in regulating the folding unfolding. It will be causing for folding unfolding of the leaves. Okay. और क्या बचा है? हाँ, vascular bundles में भी आप यहाँ xylem phloem देख सकते हो। मतलब यहाँ vascular bundle will be having xylem and phloem. ये है phloem, ये है xylem. ओके, और क्या? अब यहाँ हॉलोनेस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि xylem is after all mainly xylem means it is vessel and it will be helping in transportation of water. It is a tube like structure, है ना। यहाँ भी थोड़ा सब स्टोमेटल कैविटी भी होता है। So that is about dicot monocot leaf. Next we will be studying about dicot monocot root. So क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। So just like any other plant body, यहाँ भी आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड द वैस्कुलर बंडल। यहाँ ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स, मतलब ग्राउंड टिश्यू को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं यहाँ इन द केस ऑफ रूट, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल पैरेन्किमाटस सेल्स एंड टिश्यू। और एपिडर्मिस में यहाँ रूट हेयर्स है, लेकिन मोनोकॉट रूट में कम रूट हेयर्स होता है, डाइकॉट में ज्यादा रूट हेयर्स होता है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। फिर अंदर देखो, कॉर्टेक्स के अंदर आके देखो तो वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, दोनों रूट और मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, दोनों जगह आपको बहुत कॉमन चीजें देखने के लिए मिलेगा, दैट इज दे हैव गॉट एंडोडर्मिस, लाइक बोथ ऑफ देम हैव गॉट एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोक्साइलम, मेटाक्साइलम, पित्त, फ्लोएम। ओके, सो आउटर मोस्ट हम देखेंगे डाइकॉट रूट फर्स्ट। ओके, आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वैस्कुलर बंडल का, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस विल बी हैविंग द सुबरिन डेपोजिशन। ओके, and that's why you are able to see strip like cells, and this hence it is called as Casparian strips. आपको Casparian strips देखने के लिए मिलेगा in endodermis, literally box like cells you are able to see over here and here because of the suberin deposition. Okay, this all are made up of lipid like thing actually. फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर आप पेरिसाइकल को देखोगे, पित्त को देखोगे। पेरिसाइकल इज नथिंग बट द टिश्यू विच इज प्रेजेंट हियर। देखो, यूजुअली जो xylem phloem के बीच बीच में कुछ कुछ सेल्स आते हैं उसको पेरिसाइकल बोलते हैं। सो हियर पेरिसाइकल्स वी हैव गॉट ओवर हियर। ओके, मतलब एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर जो सेल्स आते हैं पेरिसाइकल होते हैं। फिर आपको xylem और phloem देखने के लिए मिलता है। यहाँ अलग अलग टाइप का xylem phloem है। ओके, मतलब प्रोटोक्साइलम, मेटाक्साइलम है। ओके, दैट इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन वी हैव प्रोटोक्साइलम, मेटाक्साइलम, और ये यहाँ भी है। ओके, यहाँ मेटाक्साइलम इज लार्जर एंड इट इज प्रेजेंट टवर्ड्स द सेंटर, और वो यहाँ भी ऐसे ही है, लार्जर। अब हमने देखा ना रूट में एक्सार्क कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, देखा ना हमने exarch condition. Yeah, protoxylem is inside, sorry, metaxylem is inside, protoxylem is outside, and that is what you are able to see. Exarch, protoxylem is inside,
exarch outside, x मतलब outside, protoxylem outside. So छोटा छोटा जो xylem है ना, ये outside होता है root में. We are talking about root. Okay, so Rx is root में exarch. Exarch मतलब outside protoxylem. So छोटा छोटा जो xylem दिख रहे हैं ना यहाँ, ये आउटसाइड होता है. यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी छोटा छोटा जो xylem है, protoxylem is present outside. और yeah, that is common both in both of the cases. And then the next tissue that you're able to see, phloem. Phloem देखो बीच बीच में phloem होता है, between the xylem and phloem. Okay. और आपको क्या कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ, कॉन्जॉइंट या रेडियल. दिस इज रूट, है ना. रूट में रेडियल अरेंजमेंट, मतलब रेडियल मतलब क्या है यहाँ, फ्लोएम और xylem का अरेंजमेंट रेडियल, मतलब दे ऑल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियस. यू कैन सी हियर xylem is in this, phloem is in this radius. So यहाँ भी xylem is in this radius, phloem is in another radius. Okay, so you are able to see Rx, that is exarch, and you are able to see radial type of arrangement of vascular bundles. And at the center of the vascular bundles आपको पित्त भी देखने के लिए मिलेगा दोनों जगह. और यहाँ डाइकॉट में कंजक्टिव टिश्यू करके एक टिश्यू होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द xylem एंड फ्लोएम. मतलब एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर जो आता है ना, वो पेरिसाइकल है. और वो जो टिश्यू हम xylem फ्लोएम में यहाँ डाइकॉट में देखने के लिए मिलेगा बिटवीन xylem एंड फ्लोएम, दैट इज कंजक्टिव टिश्यू which is conjuncting, which is like joining xylem phloem. Okay, so ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनसीईआरटी का इमेज है. ये जो डॉट्स है ना, पिंक कलर डॉट, मैंने ही ड्रॉ कर रखी हूँ. यहाँ फ्लोएम को अच्छे से दिखाया नहीं है, बट आई गॉट सम अदर इमेज हियर. यू कैन सी xylem phloem लिटिल बिट बेटर. मतलब ये है फ्लोएम और ये है xylem. मेटाxylem इज प्रेजेंट इनसाइड, प्रोटोक्साइलम आउटसाइड, प्रोटोक्साइलम आउटसाइड. ये है फ्लोएम. सो यहाँ हो गया हमारा रूट. हाँ, एक चीज़ें लिखने के लिए मैं भूल गई थी. यहाँ एपिडर्मिस का दूसरा नाम है एपिब्लेमा. दोनों जगह एपिडर्मिस का दूसरा नाम है एपिब्लेमा. हो गया रूट भी. अभी शूट के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टडी अबाउट डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. स्टार्टिंग विद द डाइकॉट स्टेम. सो डाइकॉट स्टेम में हम सेकेंडरी ग्रोथ को देखने के लिए मिलेगा. That is, stem is going to grow in the girth, that is width or broadness is going to increase in the dicot stem. और जैसे ही बाकी प्लांट बॉडी में आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वास्कुलर बंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ भी सेम चीज़ें होता है. सो एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल हेयर ओवर हियर विच इज नॉट देयर इन द मोनोकॉट स्टेम. मतलब यहाँ सिर्फ एपिडर्मिस है, रूट हेयर्स मतलब स्टेम हेयर्स इतना नहीं होता. डाइकॉट स्टेम है, स्टेम में स्टेम हेयर्स होता है विच इज कॉल्ड एज trichoderms. Okay, and inner to the epidermis we get to see the ground tissue which is made up of hypodermis, parenchyma, endodermis and pericycle. मतलब ये जो चार चीज है ना, this is what is ground tissue. And starting with the epidermis, hypodermis. epidermis के just अंदर जो टिश्यू होता है दैट इज हाइपोडर्मिस विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कोलनकाइमा. यहाँ एनलार्ज्ड वर्जन भी है. वैसे एपिडर्मिस के अंदर कोलनकाइमा, दैट इज नथिंग बट हाइपोडर्मिस, यू आर एबल टू सी. उसके अंदर आपको ये देखो, ये है हाइपोडर्मिस. हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस मतलब एपिडर्मिस. ओके, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होता है दैट इज मेड अप ऑफ कोलनकाइमेटस टिश्यू. उसके जस्ट नीचे पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखने के लिए मिलेगा विच इज हैविंग सम स्पेसेस. फिर आपको मिलेगा अंदर एंडोडर्मिस यहाँ. एंड एंडोडर्मिस के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा पेरिसाइकल. यहाँ जो एंडोडर्मिस है ना, दे हैव गॉट स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज स्टार्च शीथ. एंडोडर्मिस दूसरा हमने कहाँ देखा एंडोडर्मिस को? हाँ, यहाँ रूट में. रूट में एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? एंडोडर्मिस वुड बी हैविंग सुबरिन एक्चुअली. ओके, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू फॉर्म कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. एंडोडर्मिस इज कवर्ड बाय सुबरिन. लेकिन यहाँ डाइकॉट स्टेम में, मतलब या इन जनरल डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस वुड बी हैविंग स्टार्च ग्रैन्यूल, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीथ. कैस्पेरियन स्ट्रिप इज इन द डाइकॉट रूट
I mean in general in the root, okay, और स्टार्च शीथ इन डाइकॉट स्टेम. फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस के नीचे आता है पेरिसाइकिल विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. ओके, यहां भी लिखेंगे स्टार्च शीथ. एंडोडर्मिस इज स्टार्च शीथ. पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू. ये हो गया हमारा ग्राउंड टिश्यू. ओके, पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम देखने के लिए मिल रहे हैं, कैम्बियम, मेटाक्साइलम हो गया, प्रोटोक्साइलम हो गया. देखो यहाँ प्रोटोक्साइलम इज प्रेजेंट इनसाइड एंड दैट्स वी ऑलरेडी नो. स्टेम में एंडार्क देखने के लिए मिलेगा. द ट्रिक इज स्टडी, है ना. एंडार्क का मतलब क्या है? प्रोटोक्साइलम इज प्रेजेंट इनसाइड, मेटाक्साइलम आउटसाइड, प्रोटोक्साइलम इनसाइड, एंडार्क, एंडो एंडार्क, है ना. सो फ्लोएम और एक्साइलम के बीच में कैम्बियम होता है, कॉज ऑफ विच एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ इज गोइंग टू हैपन. जो आप यहाँ कैम्बियम देख रहे हो ना, मतलब यहाँ जो कैम्बियम है वो यहाँ आप देख रहे हो. ये कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम करके बोलते हैं. और ये कैम्बियम को ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ, और ये जो स्ट्रक्चर ज्वाइन कर रहा है ना फेसिकुलर कैम्बियम को, उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम करके बोलते हैं. एंड आल्सो वी विल बी एबल टू सी मेडुलरी रेस इन द डाइकॉट स्टेम विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल. ओके, फिर अंदर होता है पिथ एंड यू नो द इंक्रीज ऑफ द गर्थ इज बाय द फेसिकुलर कैम्बियम, वी ऑलरेडी नो दैट. फिर देखेंगे मोनोकॉट स्टेम के बारे में. यहाँ भी एपिडर्मिस होता है लेकिन शूट हेयर्स नहीं होता ज्यादा. यहाँ हाइपोडर्मिस भी होता है विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू. यहाँ हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा. फिर यहाँ भी वैस्कुलर बंडल्स होता है विच इज कवर्ड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू. ओके, vascular bundles are having sclerenchymatous tissues as well, and there is also ground tissue. Okay, vascular bundles के बीच और epidermis के बीच में ground tissue भी होता है. and yeah, vascular bundles में xylem और phloem भी होता है. as you can see, this is how you are able to see phloem and xylem together distributed wholly in the monocot stem. यहाँ हमारा हो गया monocot stem एंड यहाँ हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हो गया. आई होप यू लाइक द वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय.